and the President has given assent on June 26. I don't know what went wrong where, in a double hurry, she had withdrawn the bill in the beginning of the first day of this session, and again on the same day, within 4 hours, she reintroduced the bill in this House. I don't understand why such a hurry and what for. Presently, the cooperative banks are under the state government. The last 6 years, we have seen that this government is bent upon bringing bill after bill, amendment after amendment, simply to divest powers from the state government, and it is bent upon converting the state governments into Tahsildar office, where this government will remain like a collector, and the Tahsildar has to do everything simply by folding hands. This is what happening even everywhere in every part. Government claims that it wants to bring cooperative banks on par with the developments in the banking sector through better management and proper regulation in them. This is the reason given on paper. But seeing the past actions of the government, the hidden agenda of this bill is to bring state cooperative banks under RBI, is to take away the deposits, the reserves from these banks. As has been done in the case of Reserve Bank of India itself, this government has taken 1.76 lakh crores on August 2019 to enable these business houses, big business houses. Yes, please conclude. Sir, I'll finish it, sir. Yes. Involve the agricultural sale and marketing. These things are being done. As regards the better management and proper regulation, I beg to differ here. This government has merged several banks. What had happened to them? Even after merging these banks, no tangible result has come. The Reserve Bank of India, the State Bank of India, the largest bank in the world, has gone into debt, and they are selling. Yes. So it's very unfortunate that this entire bill and the discussion of the ordinance into the bill has become defaming of the cooperative banks. And I would just ask a few pointed questions to the Honorable Finance Minister, because she's always been very patient with me whenever I've reached out to her with the PMC issues. My first question to her is that this ordinance was brought out in the month of June. It's been over 3 months. So if you bought this ordinance out to help the PMC people, what have you achieved in the last 3 months to help every depositor of the PMC bank? This is my pointed question, if she could be generous enough in answer. Point number 2 is the PMC bank, about what is the timeline? Thanks to this bill, will every depositor get his or her money back? I want a committed timeline. The whole idea of changing this is that every depositor gets the money. So with how many months does she commit officially on the floor of this House to this nation that every depositor of PMC bank will get their monies? 6,500 crores is the capital infusion required. So will it be a long-term interest-free loan? Because only 80% depositors have not got their monies. Only the small depositors have got their monies. So by when will and how are you going to infuse this 6,500 crores under this new ruling? And by when? Again, I want a timeline, and we really need a date. Talking about properties, there was a proposal to sell the property so that these depositors get their money. But, sir, you'll be surprised to know that the RBI went to court and stalled this decision. So what is the position of this government under this law for this? There is an administrator being put in. Now, RBI has suggested this administrator. Now, why was PMC treated like this? Because ILFS had a very young, dynamic person to turn it around. So why PMC is constantly treated differently by this government is something they really need to explain to all of us. Other last 2 points are that there is a merger or a resolution specialist on board. The proposal was given over 1 year ago. If this government is so committed to improving the lives of these depositors of PMC Bank, why are they not agreeing when the proposal was given 1 year ago for a resolution specialist on board? 60 people have died, 3 people have committed suicide, and 9 lakh families are affected because of this PMC. So what is the timeline? I reiterate and I repeat my question, by when will you get this resolved? And everything is moving to RBI. So does RBI have a magic wand or a pill? Because somehow for ILFS, ICICI, Nirav Modi, Mehul Choksi, commercial banks,
they've all been under RBI, but I haven't seen financial discipline. So it's very unfair to just say cooperative banks. And if Thank you, PMC, Supreme. I repeat, because I'm happy to see our Thank you, Supreme. inflation blood, I want to repeat and ask PMC Bank, Shri Rahul when Sewal. will they get their money? Please, we'll be very kind of you if you give us a date and a timeline for PMC. धन्यवाद अध्यक्ष श्री महोदय। राहुल शेवाले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बैंकिंग विनिमय संशोधन विधेयक 2020 को जो 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में पेश किया गया है, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन करने के लिए है। अधिनियम बैंकों के कामकाज को नियंत्रित करता है और लाइसेंसिंग, प्रबंधन जैसे विभिन्न पहलुओं पर विवरण प्रदान करता है। यह विधेयक 26 जून 2020 को घोषित बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 को प्रस्तापित करने के लिए है। अधिनियम कुछ सहकारी समितियों को, जैसे कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी भूमि बंधक बैंकों पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा इन सहकारी समितियों को अपने नाम के साथ या उनके व्यवसाय के संबंध में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए या चेक को मंजूरी देने वाली इकाई के रूप में कार्य करना चाहिए। तो फिर सहकारी समितियों और सहकारी भूमि बंधक बैंकों को RBI द्वारा नियंत्रित करने संबंधी योजना का क्या महत्व रह जाएगा और खाता धारकों का यह कर्ज धारकों को इंटरेस्ट को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। महोदय, 26 जून को केंद्र सरकार द्वारा इस अध्यादेश को लाने का मकसद सभी सहकारी और प्राइवेट बैंकों को RBI की छतरी के नीचे लाने का था। तो PMC बैंक के मुद्दे, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे उसके डिपॉजिटर है, उसके मेंबर्स हैं, तो बैंक में मुद्दे को सुलझाने के लिए, PMC बैंक के मुद्दे को सुलझाने के लिए और एक सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए RBI के क्यों देरी कर रहे हैं, और ये वे दिल्ली उच्च न्यायालय को हलफनामा सौंपकर सहकारी बैंक की पूंजी संरचना की व्याख्या कर रहे हैं। वास्तव में ये हास्यास्पद है कि PMC बैंक का कोई उचित समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और अकाउंट धारकों को कोई राहत नहीं मिली है। PMC बैंक घोटाला नवंबर 2019 में हुआ। 1 साल बीत जाने पर अभी RBI की इस मामले में कोई उचित समाधान निकल नहीं पाया। ये दुखद है। सुवर्ण सहकारी बैंक का भारतीय विदेशी बैंक में विलय हो गया है। मराठा मंदिर कोऑपरेटिव बैंक और दक्षिण भारतीय कोऑपरेटिव बैंक का सारस्वत बैंक में विलय हुआ है। तो फिर RBI को और PMC बैंक के विषय में भी इसी तरह कोई कदम उठाने में क्या दिक्कत है? PMC बैंक के विलय की सभी शर्तों को पूरा करता है और तो PMC बैंक को भी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय करना देना चाहिए, जिससे खाता धारकों को राहत मिल सके। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक को बचाने के में सहयोग किया और वे LIC, IDBI, HDFC ये आदि हितधारकों से फंड जुटाकर छोटे भुगतान में बैंक में बदलने में मदद किया है। महोदय, देशव्यापी लॉकडाउन के कारण PMC बैंक के जमाकर्ताओं के बीते 6 महीनों से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हालांकि RBI ने पैसा निकालने की लिमिट बढ़ा दी थी, तो भी मुश्किलें का समाप्त नहीं हुए। सभी समस्याओं का समाधान PMC बैंक का विलय होने पर ही होगा, जिससे जमाकर्ताओं को राहत मिलेगी। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री मिनिस्टर का कथन है कि राज्य में एक कंक्लूड कर रहा 65% MSCI से लाभ प्राप्त करने वाली केंद्रीय सहकारी रिवाइवल पैकेज में कवर नहीं होता है। तो महाराष्ट्र राज्य के लोगों को तो आत्मनिर्भर भारत योजना का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और फिर मोरेटोरियम योजना में ब्याज के ऊपर ब्याज से वैसे ही आम जनता को कमर टूटने वाली है। तो फिर मोरेटोरियम का क्या लाभ मिलता है? मैं कंक्लूड कर रहा हूँ लास्ट में। श्री मनोज महोदय, अधिनियम के तहत RBI अधिस्थगन के तहत एक बैंक रखने के बाद अपने उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए या जमाकर्ताओं के हित में बैंक के पुनर्निर्माण या समामेलन के लिए एक योजना तैयार कर सकते हैं। तो सभी दिवालिया होने के लिए कगार पर खड़ी सहकारी बैंक के राष्ट्रीयकृत बैंकों विलय की योजना। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल के ऊपर बोलने के लिए मुझे मौका दिया और मैं यहाँ पे इस बिल का पुरजोर समर्थन इसलिए करता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने छोटे निवेशकों का ख्याल किया। उनके बारे में पहली बार किसी ने सोचा है, ऐसा ये वातावरण इस देश में बना है। मैं अपने साथियों की बात सुन रहा था जिन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर की दुहाइयाँ दी, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर किस लिए बनाया गया। सहकारी बैंकों में महाराष्ट्र से और मुंबई से आता हूँ और सहकार क्षेत्र का सबसे बड़ा वहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में और सहकार क्षेत्र में सबसे आगे ये महाराष्ट्र राज्य है। लेकिन जब मेरे साथी शिव कुमार उदासी लिस्ट पढ़ रहे थे कि जिन जिन बैंकों ने पिछले कई सालों में जिन बैंकों ने छोटे निवेशकों का पैसा डुबाया है, और वो लिस्ट में बहुत सारे नाम ऐसे थे जिस पे पिछली सरकारों ने कोई योजना लाने की जरूरत थी और वो सरकारों ने किसी अमेंडमेंट को नहीं लाया। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने छोटे निवेशकों का ख्याल करके ये बिल यहाँ पे हमारे सामने लाया है।
और छोटे निवेशकों की संख्या, इस कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों की संख्या ये 8.5 करोड़ के करीब है और 10.5 लाख करोड़ जितना इसके अंदर डिपॉजिट्स है और 7.5 लाख करोड़ जितने एडवांसेस इस बैंकों ने दिए हैं। और ये सबसे बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आम आदमी का पैसा सुरक्षित रहना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने ख्याल किया है कि आम आदमी का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे पीएमसी बैंक की बात काफ़ी लोगों ने कही। हम मुंबई से, मैं भी प्रतिनिधित्व करता हूँ, जिस मुंबई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं या जिसको कहे कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से है। और इन सभी लोगों का भरोसा आज सरकार के ऊपर इसलिए है कि सरकार, केवल केंद्र की सरकार इसका निराकरण कर सकेगी, क्योंकि मान्यवर जो भी नेता यहाँ पे बोल रहे थे, इन्होंने चिट्ठियाँ तो वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को ही लिखी है कि आप पीएमसी के खातेदारों को राहत दिलाइए। और इस बिल के माध्यम से जब हम देखते हैं कि 3 नंबर 56 और 45 ये 3 प्रोविजन के अंदर प्रावधान किए गए हैं, जो आज तक बड़ी बैंकों के, कमर्शियल बैंकों के लिए जो प्रावधान थे, अब ये कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंकों को भी लागू किया जाएगा। उसको भी इसके दायरे में लिया जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक के अंदर केवल रेगुलेटर बिठा देने से या केवल रेगुलेटर के आ जाने से खातेधारकों का पैसा वापस नहीं मिलता। उसके रिकंस्ट्रक्शन और डीमर्जर से लगाकर सारी प्रावधान के अंदर जो रेगुलेटर बैठा है उसको पावर देने की आवश्यकता थी। और जो 3, 56 और 45 के अंदर का जो अमेंडमेंट है, वो रेगुलेटर को अब ये पावर देगा कि आने वाले दिनों में इस तरह के स्कैम होते हैं तो मॉरिटोरियम पीरियड की राह न देखे बगैर इन खातेदारों को का पैसा सुरक्षित उनको वापस मिले। ये इस बिल का प्रावधान है और ये सबसे बड़ा समर्थन के पात्र है। इतना अच्छा प्रावधान अगर वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने देश के छोटे निवेशकों के लिए किया है तो ये सरकार की मंशा दिखाता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर और सहकार क्षेत्र में जिन छोटे निवेशकों के पैसे हैं उसको सुरक्षित रखने का काम, उसको चौकस रखने का काम अब ये सरकार ने किया है, वो यहाँ पे ये दर्शाता है। डायरेक्टर, ये स्कैम किस तरह से हुए, तो ये सारे डायरेक्टरों ने अपने आप के डायरेक्टरों को, बैंकों के डायरेक्टरों को ही लोन ज़्यादा देकर, बैंकों के डायरेक्टरों को या उनके रिलेटिव्स को लोन दे देकर इन कोऑपरेटिव बैंकों को डुबाने का काम जिन डायरेक्टरों ने किया है, ये बिल उनके ऊपर लगाम कसने का काम आज से करेगा। जब ये बिल आ जाएगा तो उसके बाद में जिन डायरेक्टरों ने शेयर होल्डिंग अदर कंपनीज में होती है उनको भी लोन न देने का प्रावधान इस बिल के कारण, इस रेगुलेशन के कारण मिलता है। और रेगुलेटर अब ज़्यादा पावर के साथ जब काम करेगा तो इस देश में 8.5 करोड़ छोटे निवेशक इस सरकार से आश्वस्त है, इस बिल के माध्यम से आश्वस्त है कि हमारा पैसा अब कोऑपरेटिव बैंक में सुरक्षित है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं सदन के सभी सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, विपक्ष के सदस्यों से ज़्यादा प्रार्थना करता हूं कि आप छोटे निवेशकों का हित देखिए। सरकार ने एक मंशा के साथ बिल लाया है, आप इस बिल का समर्थन कीजिए। जो अच्छा काम करते हैं उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बुरा काम करते हैं उस पर लगाम लगाने के लिए बिल जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय। भागवत मान जी, बिना मास्क के मत बैठा करो। बोलो जब तो ठीक है, लेकिन मास्क के बिना मत बैठा करो। और आपको आज मौका दे रहा हूं, अब कल मौका नहीं मिलेगा आपको, आप रोज मौका सोचे जो, आज ही मौका मिलेगा। खेती का बिल आ रहा है उसमें तो पंजाब की नो क्यों जी? नो, आज ही डिसाइड कर दिया आपका, बोल लो। नहीं सर, खेती बिल में तो बोलना पड़ेगा ना सर, बोलिए, पंजाब खेती बिल अग्रणी पे स्टेट है एक दिन सर। पहले बुला दिया आपको। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके राज्यों के अधिकार जो हैं वो छीने जा रहे हैं। ये बिल भी उसी दिशा में एक कदम है सर। और जीडीपी देश की जो है वो माइनस में है। सिर्फ खेती सेक्टर ऐसा है जिसमें जीडीपी पॉजिटिव है, उसको भी खेती बिलों के जरिए खत्म किया जा रहा है। और जो जनरल बॉडी है कॉर्पोरेट बैंकों की, उसके साथ क्या वित्त मंत्री जी बताने की कष्ट करेंगे कि उनके साथ कोई सलाह हुई? आरबीआई पहले ही ओवरबर्डन चल रही है, तो जो बैंक के एक एक करके दिवाला, जिनका दिवाला निकला है वो भी तो आरबीआई की अंडर ही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नोटबंदी के नुकसान से अभी तक लोग उभरे नहीं हैं। लोगों का बैंकों पर से यकीन उठ गया सर। अगर उनको पता नहीं चल रहा पैसा कहां रखें, अगर वो पैसा घर पे रखते हैं तो नोटबंदी करके मोदी जी ले जाते हैं, अगर बैंकों में रखते हैं तो नीरव मोदी ले जाते हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा लोगों को, करें तो क्या करें। भगवान भरोसे सरकार
चलते सुनी थी, माननीय सदस्य, लेकिन सरकार कहते हुए पहली बार देखी नहीं है है। कि इससे एक्ट ऑफ गॉड, ये ना। भगवान भरोसे है। आप सदन में बोल रहे हैं, सदन के नेताओं के बारे में कभी ऐसी टिप्पणी मत करा करें। सर चलो, हो बोल गया सकते हैं आपका। सर, इसमें कोई कोई गिरीश अनपार्लियामेंट्री थोड़ी है ऐसे। सर नीरव मोदी का सभी ने जिक्र किया, मेहुल चौकसी का किया है सर, विजय माल्या का किया है, सभी ने किया है। मेरे कि बालकनी में से आज एक रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा है। मुझे मालूम है कि ज़्यादा समय नहीं, समय का अभाव है। ओनली 1 मिनट। अरे 2 मिनट में नो सर, मेरे पास बहुत मुद्दे हैं, लेकिन मैं सीतारमन जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पूना में एक रूपी बैंक है। ये रूपी बैंक लोकमान्य तिलक जी ने लोगों के पास से 1 रुपया लेके चालू की। 5 लाख डिपॉजिटर है। आज तक अमालगमेशन का प्रस्ताव और बाकी सब चीज़ें पेंडिंग है। मैं यही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि समय का अभाव है। मुझे मालूम है इस बैंक के बारे में डिपॉजिटर को, और ये बिल को समर्थन इसलिए करता हूँ, बहुत लोगों ने बड़े लंबे चंबे भाषण किए, उनका कोई महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये बिल का एक वाक्य में अगर नाम लेना होगा तो डिपॉजिटरों को अभय देना, यही ये बिल का आत्मा है। इसलिए हम इसको सपोर्ट करते हैं। साहब जी आपको धन्यवाद देते हैं और निर्मला सीतारमन जी को भी धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री एम के राघवन जी, ओनली 1 मिनट। नो, ओनली 1 मिनट। Thank you, respected Speaker, sir, for giving me this opportunity. Sir, I rise on this occasion to strongly object the provisions of this bill moved by Honorable Minister. Sir, the bill neglects the historical contributions made by the cooperative sector to Indian banking. Sir, traditionally, Indian banking has its genesis not in the Western-style institutions, rather on Shrenis and merchant guilds. These Shrenis and guilds can be categorized as the earliest forms of money lending institutions of our country and were similar to modern-day cooperative banking. Sir, it is against the spirit of the cooperative federalism and Article 43B. So not only that, sir, the bill does grave injustice to many primary agricultural cooperative societies and credit societies by asking them to drop bank from their name. I wish to remind this August House that the successive transformation of rural areas of my state, Kerala, largely occurred due to the large contributions of cooperative banks. Sir, another thing, sir, I would like to say that Section 12 is highly controversial. It deals with the issue and regulation of paid-up share capital and securities by cooperative banks. By way of this section, the shares becomes transferable. Anybody can purchase share from the market and advise the bank to transfer the share to their names in the books of bank. It may tilt the control of the board by the subsequent elections. Sir, number 2, sir, the RBI, say another sections that proves the overarching force of RBI or cooperative banks in section 36AA, 36AAA. So I would like to say, Honorable Minister, sir, taking all such factors into account, before taking such a hasty decision, government should take into consideration the role being played by our rural banks in expense of rural credit. Government should also note that this cooperative banks forms the capital base for our micro and medium scale industries. I request the government to abandon its hasty and to withdraw this bill and send to the standing committee. With these words, I conclude my speech. Thank you, sir. श्री अधीर रंजन चौधरी जी। Sir, I shall be extremely brief in my deliberations. Sir, long year back, Mahatma Gandhi ji exhorted to the people of India that drops of water make the ocean. The reason being that there is complete cooperation and cohesion. This is the basic concept of cooperative bank in our country, sir. It is आपका a गला खराब हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोड़ दो, आज बहुत ज्यादा गला खराब हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। सर बस हो गया सर मैं दो छोटा मुझे कोई दिक्कत सर, नहीं है, मैं तो आपकी गले की मेरा चिंता कोई कर रहा हूं। दिक्कत नहीं सर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आई, मतलब सिर्फ मेरे लिए। कम्युनिस्ट वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आस,
but the cooperative world stands for we, मतलब हमारा। तो ये हमारा की जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को बचा रखना जरूरी है। सर, मैं ये सिर्फ 2-4 मुद्दा उठाना चाहते हैं कि सिर्फ ये कह दे हमारा वित्त मंत्री कि ये जो एनपीए, हमारा नेशनल बैंक पे एनपीए और कोऑपरेटिव बैंक पे एनपीए की फर्क क्या है। और दूसरी बात सर, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन नेशनलाइज्ड बैंक में कितना होते हैं और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कोऑपरेटिव बैंक में कितना होते हैं। सर, देयर इज ए हिडन एजेंडा behind the legislation to convert the cooperative bank into a private sector bank. And since 1993, RBI has been persisting on this objective. Sir, छोटे से 2 चीज बताना चाहते हैं मंत्री को सर। By allowing RBI to have a greater role, the disbursal of social welfare schemes through cooperative might be disrupted, as this has functioned successfully because of the financial autonomy of the cooperatives under the states. The cooperative का ये autonomy खतरे में है। Sir, multiple regulatory factors will bog down the functioning of the cooperative mechanism. In fact, this dual regulation has led to the regulatory gaps rather than efficiency. ये कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे प्रोफेशनलिज्म को आप दे सकते हैं? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा? कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा। इसको आप प्रोफेशनलाइज कैसे करोगे? इसका मैकेनिज्म क्या है आपके पास? इसका कोई जानकारी ये बिल पे नहीं है सर। और खासकर ये बिल और मिसगाइडेड एजम्पशन पे लाया गया। ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स कैनॉट फंक्शन एज कमर्शियल बैंक्स, देयरफॉर bringing cooperatives under the ambit of the Parent Act will limit their capacity as voluntary credit societies. In the PMC crisis, a lot of illegal lending still took place unobserved by the RBI. Commercial activities must be closely monitored at a grassroots level with equal interest from the RBI. There must be an intermediary to oversee the process. So various flaws are observed in this legislation. So I would urge upon the minister to withdraw this kind of legislation which is simply detrimental to the cooperative sector of our country, which has been nurtured over the centuries by the common people of our country, and the present banking system lies its genesis to the cooperative sector of our country. Thank you, sir. माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन का समय इस विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए। माननीय मंत्री जी। सर, हमारा एक महाराष्ट्र की स्पीकर है सर, उस सदन में सर राजस्थान में महाराष्ट्र के स्पीकर एक मिनट के स्पीकर है सर। मैं खड़े होकर बात कर सकती हूँ जी? आपकी अनुमति है तो मैं खड़े होकर बात कर सकती हूँ? नहीं मैडम। नहीं, ठीक है। नहीं तो अधीर रंजन जी और बालू जी तो भी खड़े होके बोलेंगे रोज जी। आपको मैंने परमिशन दे दी तो मिस्टर बालू जी एंड अधीर रंजन जी तो खड़े होके ही बोलेंगे फिर। Sir, I wish to thank all the members who've spoken, about 32 of them, sir. I'm not reading the complete list, क्योंकि सभी members को ये जानकारी है